तो छोटी बेबी जिहड़ी आ वो भज के आ गई। उन्होंने पता लग गया कि मेरा जिहड़ा समा आ ना शायद ना मैनू मिले। वो पहले ही आ गई अपना समा लैण दे लई। सो परमेश्वर ही की करता है, परमेश्वर इस तरह पसंद करता है जिस तरह वो छोटी बेबी ने किया। परमेश्वर कितना प्रसन्न होया। मैं ते तुसी भी खुश होए कि वो बेबी जिहड़ी आ उन्हें की कीता आ, अपने समय नू गवाया नहीं कि जे चलो जे हुण गीत का कह दिता तो अगली भज के आ गई भी नहीं मेरा समा है, मैं गीत गाना आ। सो सारी ग्लोरी असी परमेश्वर ने दिन्ने आ कि जो बच्चे दे दिल च भी परमेश्वर ने पाया कि असी उहदी महिमा उहदी वडियाई कर सकीए। हालेलुया। आइए वचन विच ख्याल करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਈਏ। कदी भी यह हो नहीं सकता। परमेश्वर कहता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी आशीष ਦੇ ਨਾਲ, मैं अपनी अनुग्रह ਦੇ ਨਾਲ, अपनी सामर्थ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। हालेलुया। सो ਅੱਜ ਦਾ वचन ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ वचन हैगा परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया की। ਅੱਜ सिर्फ दया ते असी प्रचार करांगे। ਇਹਦਾ टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਆ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ अनुग्रह ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ दया ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ अनुग्रह ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ अनुग्रह ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर ਆ। हालेलुया। सो ताड़ी ला के अपने परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ परमेश्वर ਨੇ ਆਪਣੇ अनुग्रह ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਆइए पहला असी एक भैन बारे देखते हैं। रूथ चैप्टर 2 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। रूथ चैप्टर 2 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ। तद ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਹਾਂ। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रूथ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, रूथ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ऑनेस्टली सचमुच ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ अनुग्रह ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। रूथ बॉयज ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ रूथ बॉयज ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ बॉयज ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ बॉयज ਦੇਖਦਾ ਆ रूथ ਨੂੰ कि वो सिट्टे चुग रही आ, सिट्टे चुग रही आ। वो अपने नौकर नू पूछ रहा आ कि ये लेडी ये जेड़ी औरत है ये कौन आ। ओदा नौकर ओनू जवाब दिंदा आ, ओदा कहंदा आ कि मालक ये न्योमी दी नूह आ।
जो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਬੋਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੋਆਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬੋਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਰੂਥ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਰੂਥ ਜੋ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਰੂਥ ਜੋ ਹੈ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ, ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਗੀ ਪਾ ਦਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਗੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਰੂਥ ਬੋਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਆਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਓਮੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੂਥ ਤੇ ਨਿਓਮੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੋਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਥ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਥ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਆਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਬੋਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ
बरकत मिल सकती है कि उस खेत की मालकिन बना सकता है। तो अज तुसी अपने खुदावन के भवन में आए आ। तुसी सोचो जे परमेश्वर इंसान के दिल विच इन्नी दया कर दिता है, अज असी उहदे घर दे विच आए आ, अज उहदे भवन दे विच आए आ, तो परमेश्वर दे असी उस हजूरी विच आए आ। परमेश्वर सानू किन्नी आशीष ते बरकत देवेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुहानू अपनी आशीष दे नाल बरकत दे नाल उच्चा करने वाला तुहाडा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता मैं तुहानू कदी कल्ले नहीं छड़ सकता। भावें तुसी अनाथ आ, भावें तुसी कल्ले हैगे आ, मैं तुहानू छड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तेरा यहोवा जरी आ, मैं तेरा परमेश्वर आ, जो मैं तेनू उच्चा करने वाला तुहाडा यहोवा जरी आ। जदों असीं अपने खुदावंद दे वायदिआं नू याद रखते हैं, इसी तरह रूत जिहड़ी आ वो अपने खुदावंद दे वायदिआं नू याद रखती आ, जो न्योमी ने अपने परमेश्वर वाले दस्या कि मेरा इजराइल का परमेश्वर जिहड़ा आ वो सवेर नू दोपहर नू शाम नू जदों नौ सस दोनी बैठदियां होगियां अपने यहोवा बारे अपने परमेश्वर बारे उस रूत नू दसदी आ कि मेरा परमेश्वर इस तरह दा, मेरा परमेश्वर ने लाल समुंदर दे विच दी रस्ता बनाता, मेरा परमेश्वर ने 40 साल इजराइल नू संभाल के रखा, मेरा परमेश्वर ना सौंदा आ ना बुलांदा आ, मेरा परमेश्वर इस तरह दा, मेरा परमेश्वर इस तरह दा। वो जदों रूत नू दसदी आ, रूत जिहड़ी आ अपने सस दीयां गल्लां नू जदों सुनदी आ तो उस इजराइल दे परमेश्वर ते विश्वास करदी आ। ताई तो वो कहती आ जिथे तू जाऊंगी मैं उस जगह ते जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर आ वो मेरा परमेश्वर आ, जिथे तू मरेगी उथे मैं मरांगी, जिथे तू दबी जाऊंगी उथे मैं दबी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि रूत न्योमी दियां गल्लां नू सुनदी आ। रूत जिहड़ी आ उस परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदी आ कि वो जिहड़ा इजराइल दा परमेश्वर आ ना सौंदा आ ना बुलांदा आ, वो अपने प्यारिਆਂ दे लई हमेशा जागदा रहिंदा आ। रूत वॉइस टू की कह रही है, मैं की आ जो तू मेरे ते दया करदा आ, मैं तो एक मुआबड़ आ, मैं तो एक मुआबड़ आ जो गैर जाति दे विचों आई हुई आ। मैं की आ जो तू मेरे ते दया करे। रूत नू बुआइज दे कोलों दया मिली। अज असी बुआइज दे खेत दे विच नहीं गए। रूत बुआइज दे खेत विच जाके उसनू दया मिली। अज असी बुआइज दे खेत विच नहीं गए। अज असी अपने परमेश्वर दी कलीसिया दे विच आ। अज असी अपने परमेश्वर दे बाग दे विच आए होए आ। अज असी अपने परमेश्वर दे बगीचे दे विच आए होए आ, जो कहंदा है कि जदों तुसी मेरे घर दे विच आंदे आ मैं तुहानू कदी भी नहीं छड्डांगा, तुसी कदी भी खाली नहीं जा सकते। जदों असी विश्वास दे नाल आंदे आ, ईमान दे नाल आंदे आ, भरोसे दे नाल आंदे आ, वो भरोसा करदी है अपने यहोवा दे उत्ते। रूत जिहड़ी आ अपने खुदावंद दे उत्ते विश्वास करदी आ ते की हुंदा आ, बुआइज दे दिल नू परमेश्वर छूंदा आ और बुआइज जो है उस उत्ते दया करदा। नहीं तो बुआइज को की जरूरत पई हुई आ, एक विधवा हैगी आ, एक गैर जाति तो आई आ। मुआब दा जे असीं पढ़ीए तो मुआब दा जो इजरायली लोग सी वो मुआब दे लोकां दे नाल संगति नहीं सी करना चाहुंदे। मुआब दे लोकां दे नाल उन्हां दा कोई तल्लुकात नहीं सीगा, पर परमेश्वर ने बुआइज दे दिल नू छूया। जदों असीं अपने परमेश्वर दे अनुग्रह नू अपनी जिंदगियां दे विच लै लवांगे, जदों असीं कहांगे हे परमेश्वर मैं कुछ नहीं गा,
सिर्फ तेरी दया मेरे उत्ते हुई आ, तेरी सामर्थ मेरे उत्ते हुई आ, तू मैनू अपने पुत्र और धीआं बना लिया आ। तेरा अनुग्रह साडे उपर होया, तेरा शुक्र करते हैं। रूत दी बुक नू जे असीं पढ़ीए, रूत दी बुक दे विच लिखिया होया आ कि वो गैर जाति दी सीगी। ये उसनू किस तरह जित मिली? उन्हें ठान लिया कि मैं जिस परमेश्वर नू न्योमी मानदी आ, मैं उसी परमेश्वर की उपासना करनी आ। पर जे असीं इहदे चलीए, जदों यीशु मसीह ने जन्म लिया तो इस घराने दे विचों नहीं जन्म लिया। जदों असीं अपने परमेश्वर की इबादत रूह और सच्चाई दे नाल करदे आ, जदों असीं ठान लैंदे आ, असीं ठान लैंदे आ कि साडा परमेश्वर जिहड़ा आ और ना सानू छड्डूगा ना सानू त्यागूगा। ओहदे वायदिआं नूं जदों असीं आमीन करके कबूल कर लैंदे आ, ओह कहंदा मैं तुहाडे नाल नाल आ, मैं तुहाडे अंग संग आ। जिद्दां भैण ने गवाही दित्ती कि परमेश्वर ने मैनू छूया। परमेश्वर जिहड़ा आ, तुसी वचन च कहंदे आ कि जदों तुसी तुरदे फिरदे बहंदे उठदे परमेश्वर दे नाम नूं इबादत करदे आ, ओहदे वचन सुनदे आ, ओहदा कलाम सुनदे आ, मैं तुहाडे ते दया करांगा। भैण ने गवाही दित्ती कि परमेश्वर जदों मैं गीत सुन रही सी तां परमेश्वर ने मैनू छूया। ये सारी ग्लोरी अपने परमेश्वर नूं दिंदे आ, क्योंकि साडा परमेश्वर ही आ जो सानू खाक तो चुक के बरकत दे नाल भरपूर कर दिंदा, अपनी दया दे नाल, अपनी सामर्थ दे नाल भर दिंदा है। ओहदा फजल आ, ओहदी किरपा आ। रूत जो है गैर जाति दूसरे थां तो आई, मुआब तो आई आ, मुआबणिया विधवा आ। पर साडा परमेश्वर दूसरिਆਂ दे दिलां दे विच दया पा दिंदा आ। जिथे असीं काम करदे बॉसां दे दिलां दे विच दया पा दिंदा आ कि ये मेरा बच्चा जिहड़ा आ, इस दे उत्ते दया ही करनी आ। असीं पढ़ांगे एस्तर दी बुक चैप्टर 2 ਤੇ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਅਸਤਰ ਐਸ਼ਬਰੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 7ਵੇਂ ਬਰੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। Praise the Lord, hallelujah। ਐਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। पर वो लड़कियां भी कोई मामूली लड़कियां नहीं सी। राजे कोल जे आऊगा कोई तो वो बहुत ही अमीर घराने दियां कुड़ियां सी, जो उन्हां दे विचों एक एस्तर सी। एस्तर जो है उसके माँ बाप ने अनाथ आ, पर परमेश्वर की करता है, एस्तर दे उत्ते परमेश्वर की दया होती है। परमेश्वर जिहड़ा आ अपने लोकां नूं जदों अपने अनुग्रह दे नाल भरदा आ, अपनी दया दे नाल भरदा आ, वो की करदा, भावें तुसीं अमीर आ भावें तुसीं गरीब आ। कई लोग कह दिंदे आ ना, जिहड़े ज़्यादा अमीर आ, सुरग दा राज वचन में इस तरह लिखा है, पर अब्राहम भी बहुत धनी सीगा। धनी दा नंगना ऊंट दे नक्के विच दी हाड़ आ। पर वचन विच असीं अब्राहम दी मिसाल भी देख सकते हैं। बहुत अमीर सी
परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। बहुत सारिया कुड़ियां आंदियां जो अमीर तनी आ, पर जो एस्टर आ अनाथ आ, वो भी राजे दे कोल लियांदी जाती आ। पर ਜਿਹੜੀਆਂ अमीर घराने ਦੀਆਂ कुड़ियां उन्हां विचों कोई भी चुनी नहीं गई, पर एस्तर नूं चुनिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एस्तर नूं अपने लोकां दे लई खड़ा करना सी, अपने लोकां दे लई उसनूं उस जगह ते लैके जाना सी। जिस तरह मुआब तो रूत नूं लैके आंदा, परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी नूं अपने जो दाऊद दी जड़ है यीशु मसीह ने उस जगह तो पैदा होना सी। इसी तरह एस्तर नूं भी राज महल दे विच लियांदा गया ताकि वो अपने लोकां नूं जो यहूदी लोग सी उन्हां नूं बचा सके। जदों राजे ने एस्तर नूं देखिया तां उसने उहदे सिर उत्ते ताज रख दिता, उस उत्ते दया हो गई, उस उत्ते उहदा अनुग्रह हो गया। ये अनुग्रह इस करके होया क्योंकि ये परमेश्वर वालों सी। परमेश्वर की सामर्थ दे नाल ही तुहानूं लोकां कोलों दया मिलदी है। परमेश्वर दे दया दे नाल ही तुहानूं अनुग्रह मिलदा है, क्योंकि वचन विच लिखिया है एस्तर दे जिहड़े हालात सी वो बदल गए। इसी तरह परमेश्वर की उहदे ते दया हुई। इसी तरह जे अज हालात खराब आ, जो असीं अपने खुदावंत ते विश्वास करते हैं, परमेश्वर की कहता है मैं तुहाडे दुखां नूं, तुहाडीआं बीमारियां नूं, तुहाडे परेशानियां नूं, जो तुसीं मेरे ते भरोसा रखते हैं, मैं तुहाडे हालातां नूं बदल दूंगा। एस्तर दे जो हालात सी जो असीं पूरा पढ़िए तो बेचारे माँ बाप नहीं सी होते। इसी तरह परमेश्वर ने उहदे हालातां नूं बदलिया अपनी महिमा दे लई। अज परमेश्वर कहंदा जे तुसीं हालातां दे बुरे हालातां दे विच आ, मैं अपनी महिमा दे लई तुहानूं इस्तेमाल करूंगा। जेड़ा मेरे ते भरोसा रखदा है, जेड़ा मेरे ते यकीन रखदा है, क्यों? क्योंकि यिर्मयाह दे विच लिखिया होया मैं अपनी योजना दे मुताबिक तुहानूं आशीष ते बरकत दूंगा। मेरे ख्याल जिहड़े आ वो तुहाडे ख्याल नहीं, मैं तुहाडे लई एक योजना बनाई हुई आ। इंसान के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया होया, एक योजना बनाई हुई है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुहाडे लिए एक रास्ता कटांगा, तुहाडे लिए एक योजना बनावांगा। असीं अपने परमेश्वर का धन्नवाद करिए, उस परमेश्वर के लिए धन्नवाद करिए जिसने सानू अज तक संभाल के रखिया। ਉਹਦਾ अनुग्रह जो साडे उत्ते आंदा आ, साडे बंधन जिहड़े आ, साडी बीमारियां दे बंधन जिहड़े आ, साडे बुरे समय दे बंधन जिहड़े आ वो तोड़ दिंदा। जो ਉਹਦਾ मसा आंदा आ, जो ਉਹਦਾ मसा आंदा आ तां बंधन टुट जांदे आ। जो ਉਹਦਾ मसा आंदा आ तां कह नहीं दिंदे संगल जिहड़े आ वो टुट जांदे आ। कई वेले लोग जिहड़े संगलां दे नाल बन्ने हुंदे आ, क्यों? क्योंकि उन्हें जी बैड स्पिरिट होंदी आ। पर जो परमेश्वर का मसा आंदा आ तो वह संगलां नूं भी तोड़न की शक्ति रखता, वह संगलां नूं भी तोड़ दिंदा। यिर्मयाह 29 दे विच लिखिया है परमेश्वर कहंदा आ मेरे कोल योजना है तुहाडे लई, पर वह योजना बुराई दे लई नहीं गी, पर वह योजना भलाई दे लई आ। पर तुसीं मेरे मगर लगे रहो, मेरे मगर लगे रहो। जो असीं अपने परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर कहता आ मैं तुहानूं अपनी आशीष के नाल, तुहाडे अनुग्रह के नाल और तुहानूं अपनी सामर्थ के नाल भर दिआंगा। असीं अपने परमेश्वर का धन्नवाद करिए क्योंकि वही धन्नवाद दे योग आ। असीं परमेश्वर नूं कहिए कि हे परमेश्वर असीं तेरी योजना दे लई धन्नवाद करदे, जो तू साडे लई प्लान रखे होए आ उस विच असीं तेरा धन्नवाद करदे आ। तुसीं ते मैं है की आ, तुसीं ते मैं
कोई लोकां नालों बहुत चंगे नहींगे। जे कहिए कि असीं बहुत लोग चंगे आ, मैं ते तुसी लोग चंगे नहीं, पर सिर्फ ते सिर्फ यीशु मसीह दी दया आ जो साडे उपर होई आ, साडे बच्चे उत्ते होई आ, साडे घराने उत्ते होई आ। असीं अपने खुदावंद दा धन्नवाद करिए। ओदी दया आ जिसने सानू अज तक संभाल के रखिया। उसकी दया आ, जो उसकी दया हो जाती आ तो अपने बच्चों नू भी संभाल के रखता है। अज मेरे उत्ते तुहाडे उत्ते उस परमेश्वर का अनुग्रह आ, दया आ जो इस मुल्क विच लैके आंदा होया आ। उहदा धन्नवाद करिए, उहदे नाम नू जलाल दईए। परमेश्वर नू कहिए, परमेश्वर मैं वफादारी दे नाल तेरे घर विच आंदा आ और मैं वफादारी दे नाल विश्वास दे नाल तेरी आराधना करदा आ। और जिस तरह रूत नू बुआब दे कोलों दया मिली, इसी तरह जो असी जिथे काम करते हैं, जिस जगह ते काम करते हैं, परमेश्वर कहना मैं तुहानू आशीष वाले बना दूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुहानू बरकत वाले बना दूंगा। मैं तुहाडे बॉस दे विच, दिल दे विच और तुहाडे मालिक दे दिल दे विच दया पा दूंगा कि मेरे बच्चे आ, इन्हां दे आशीष होगी। अपने परमेश्वर का धन्नवाद करिए जो असी वफादारी दे नाल अपने खुदावंद बुड़ परमेश्वर कहता जे तू मेरा काम भी करता है तो कुछ कहना नहीं। मूसा की तरह मूसा ने परमेश्वर के हुक्मां नूं पालना की, पर असीं देखदे कि कनान दे विच सिर्फ लखां दी तादाद दे नाल जो लोग आए सी बुड़ करते। 3 दिनों का रस्ता जो 11 दिन का बन गया। तुसीं ये देखो परमेश्वर उसी जगह ते उन्हां नूं घुमाउंदा रहा भी घूमी जाओ। जो 3 दिन का रस्ता 11 दिन का बनाता परमेश्वर ने, और 11 तो 40 साल का रस्ता बनाता। बस अपने खुदावन नूं कहो जिस तरह जुर्माया दे विच आ कि परमेश्वर तेरे की प्लान है मेरे लिए। अपने प्लानां नूं कहना मेरे प्लान जिहड़े आ तुहाडी भलाई दे लई आ, तुहाडी बुराई दे नहीं के। जे असीं कहिए कि बुराई दे, वो कहना मैं तुहाडे नाल चंगा सोचदा आ, तुहाडे लई चंगा जानदा आ। कहना मैं भलाई दे प्लान आ मेरे को, सिर्फ मेरे ते विश्वास रखो। जिहड़ा मेरे ते विश्वास रखता है उन्होंने मैं खाक तो चुकता है और अपने भरपूरी जीवन दे विच भरपूर कर देना उसके जीवन दे विच। परमेश्वर कहता अपने बोझां नूं मेरे उत्ते सुट दो। अज जे तुसीं बोझ लैके आए आ, कोई भी परेशानी आ, इत्थे छड़ जाओ। यसु मसीह जी मैं तेरे भवन दे विच छड़ के जा रहा। रूत जिस खेत में आई आ उस खेत की मालकन बन गई, तू उन्होंने भरपूर कर दिता। अज मैं तेरे बाग दे विच आया होया, तेरी कलीसिया दे विच आया होया, तेरे बगीचे दे विच आया होया। इस विचों मैं खाली ना जावां, मैं तेरे अनुग्रह नूं लैके जावां, तेरी सामर्थ नूं लैके जावां। किसी वाल नहीं देखना कि कौन किस तरह का है। अपनी बरकत लेनी है, अपनी दया लेनी है। अपने खुदावन नूं कहो कि हे खुदावन, जिस तरह तू रूत नूं बरकत दिती, और तुसीं देखो कि जो मुआब तो आई आ, गैर जाति चो आई आ, जो विधवा आ, परमेश्वर ने उस उत्ते दया की। उसी घराने दे विच दाऊद बादशाह पैदा होया, उसी घराने दे विच यीशु मसीह पैदा होया। जो तुसीं रूह और सच्चाई दे नाल इबादत करोगे तो तुसीं इस बगीचे दे विचों, इस बाग दे विचों जो फ्लावर दे नाल, दया दे नाल, अनुग्रह दे नाल भरिया होया है, कहंदा मेरे घर दे विचों कोई खाली नहीं जाऊगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाइए। सर्वशक्तिमान
दयालु और कृपालु पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ इस कलीसिया उत्ते बनी रहे। जिन्ने भी भैन भाई आए हैं प्रभु, असी इस खेत दे विचों, इस कलीसिया दे विचों, इस बाग चों, इस बगीचे चों खाली ना जाइए। जिस तरह दे असी आए हैं उसी तरह दे ना प्रभु असी चले जाइए, बल्कि तेरी अनुग्रह नूं, तेरी सामर्थ नूं, तेरी दया नूं नाल लेके जाइए। प्रभु यीशु मसीह जी, तुसी दया करो। एक एक नूं अपने मस्सा दे विच, मस्सा दे नाल भरते हैं। असी की है प्रभु जी जो तू साडे ते दया कीती। असी तो उस हनेरे दे विच पटके फरदे सी, हनेरे दियां वादियां दे विच डगमगाउंदे सी, पर तू अपने इकलौते पुत्र नूं भेजिया, और जिसने इस संसार दे विच रोशनी लियाती है, और तू सानू अपने पुत्र और दियां बना लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते और तेरे नाम में चला देने। तेरा अनुग्रह छोटे बच्चे तो लैके वड्डे तिकर एक एक दिन आते बनिया रहे। प्रभु कोई भी तेरे भवन दे विचों खाली ना जावे, बल्कि तेरी दया नूं लैके जावे। सब कुछ मांगते हैं तेरे पवित्र बेटे यीशु दे नाम ते, आमीन। हे साडे पिता, तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है, जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी असां दे ते साडे कसूर सानू माफ कर, जिवें असीं भी अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू आज़माइश च ना पा, सगों बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा सदा तेरा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुसां सबना दे